start with Cartesian product of two sets. Suppose we are given two sets A and B. Okay. So suppose we are given two sets A and B. Then the Cartesian product of these two sets is denoted by A cross B, and it is given by the set A cross B is defined as the set of ordered pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, right? So if we take the Cartesian product of two sets, it is going to be collection of ordered pairs A comma B, where the first element comes from the first set and the second element comes from the second set. So here we call A comma B is an ordered pair. Here this A comma B is called an ordered pair. So now you may think that what is the meaning of saying this is an ordered pair? So ordered pair means simply that, so since we are calling this is an ordered pair means that, so if we are writing A comma B, on the other hand we are writing B comma A, both of these are different. These are same under only one condition, if A is equal to B, right? So this should be taken care of whenever I'm writing A comma B. It is never going to be same as B comma I. Okay, this is going to be same as B comma I under only one condition, if both are same, if A is equal to B. And if the order, so if you notice here, so here I'm writing A comma B, here I'm writing B comma I. Okay, so here in both the cases the order is going to be different. Okay, so just remember this thing, how we are defining the Cartesian product of two sets. So I'm taking a small example on this, then we will proceed. For example, if I take a set A to be 1, 2, 3 and I take B to be, let us say I write it 3, 4. Okay, so now we know how we defined the Cartesian product of A and B. So we can write, if I'm going to define A cross B, it is going to be what? It is going to be collection of ordered pairs A comma B such that A comes from A and B comes from B. So you can write it very easily. Okay, so we will fix at the first position, we will take elements of A, and for second position we will take elements of B. So we can define it. So we can start with 1. So I can write 1 comma 3, 1 comma 4. Next 2 comma 3, 2 comma 4. Next 3 comma 3, 3 comma 4. So for these two given sets A and B, we are able to define the Cartesian product of A and B. On the similar note, you can think about the Cartesian product of B and A, means whenever we are going to define B cross A. So whenever we will define this B cross A, the order will be reversed. Okay, the first element will come from B and the second class element will come from A. So if you try to write it, so we will start like this. So this is going to be, its elements are going to be 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3, then 4 comma 1, 4 comma 2, 4 comma 3, right? So this is the way how we are going to define the Cartesian product of two sets. Now you might have noticed here we defined the same sets are given A and B. Okay, so here we are defining A cross B, here we are defining B cross A. You might have noticed the Cartesian product of A and B is not necessarily equal to the Cartesian product of B and A, because the order has been reversed. So here we were taking the first in this ordered pair, the first element was taken from A and the second element was taken from B. Similarly, here the order was reversed. Are you able to understand till now? So you may register your response by raising your hand. And it's very simple. Yes, Kanika. Yes, sir. Have you any doubt? कोई doubt है बेटा? No, sir. I have understood all things. So yes, Anshika, Akanksha, sorry, Akanksha.
No, sir. Can we proceed, sir? Yes, sir. Yes, you can proceed. Okay, okay. So similarly, so like here we have written Cartesian product of A and B, Cartesian product of B and A. Similarly, you can define Cartesian product of a set with itself, A cross A. Okay, so you can define it very easily. So this is going to be, if you define it for this particular set, so the elements are going to be 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3. Then we will write 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, then 3 Yes, comma can 1. can Yes, sir, yes. no. Now you already write the Cartesian product. I Okay, think we okay. asked from one of the student. What are the other No, no, elements? I'm going to ask next one, sir. So since we have Okay, right. written this for A cross A, next we want you to think about this B cross B. So I'm showing this B. B was 3, containing two elements, 3 comma 4. So can you think about writing B cross B? Yes, sir. Yes. No, Yes, no, sir. no need to. Okay. Yes, you just click on raise hand. We will Yes. ask Raise any hand. one of you. Yes, Nikita Thakur. Yes, sir. It is 3 comma 3, 3 comma 4, and 4 comma 3 and 4 comma 3. 4 comma 4. Do you all agree? So it's very simple. If Yes, you sir. see, we can do it Yes, very sir. easily, right? Uh, Next. So one more thing is there. If you want, you can generalize this Cartesian product to the higher order also. You can define it for three sets, A cross A, then so on. So in the similar way, we go to the idea of Rn, but here we are not requiring that part. So I'm not going to discuss that. So now there is a small question for you. Just think about it, then answer. Okay. The question is, when Cartesian product of two sets is going to be empty. Just think about it. Take 5 to 10 seconds and then answer. If you know it, please raise your hand. If you understand the answer, then raise your hand. We will call some of you and then you can answer. The question is, when Cartesian product of two sets is going to be empty. Kanika Kumari. Yes, sir. Yes. So it means that the sets are also empty. Both sets are Are you empty. sure? Kanika, both are empty. Yes, sir. Okay. Just think Now about think it. about it. Think about it. So please Akanksha. call somebody else. Akanksha, roll number 67, 20CH67. Yes, sir. What can Sir, you say about it? both of the sets might be empty. Please try to recall the definition. Whenever we are saying we are defining the Cartesian product of two sets, I'm showing you the definition that I wrote initially. Yeah, this is the way how we are defining Cartesian product of two sets A and B. Right? Now just please think about it. When Cartesian product of two sets is going to be empty. So can you think of it? Sir, call Nikita, somebody else. Nikita Thakur. Yes, Nikita.
Simran Kondal. Simran. Please unmute your mic. Shabnam 19MA04. Naman, no need to write in the chat box, right? If your answer is correct, then it may bound the other student to think about the answer, right? So we are So we asking can one call by one. Naman. We can call Naman, Naman yes. itself. Naman, Naman, you are not audible. जब दोनों में से कोई empty होगा तब। Hello? Yes, yes, you are right, but I think there is a mic problem. Okay. Sir, दोनों set को एक empty तब। So, Sakshi Kondal, Palvi, Shabnam, any one of you? सर में से एक प्रोडक्ट अगर एम्प्टी होगा तो सर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट with the empty set will always be empty because empty set contains no element. Okay, it means at least one of them will be empty. You said Yes, that sir. one of them will be. It is not necessary Yes, sir. that both of them will be empty. Yes sir. Okay. So I think sir students को समझ आ गया होगा. So just see. So since we defined this Cartesian product as collection of ordered pairs A comma B such that the first element comes from the first set and the second element comes from the second set. So you notice if any of these two sets, either A or B is going to be empty, then this Cartesian product is going to be empty. It is not necessary that both the sets should be empty. Okay. जैसे पहले एक दो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया that both sets should be empty. That is correct. One way you can think कि अगर दोनों sets में कोई element नहीं होगा then this is going to be empty. But just think about it. Whenever we are going to define this Cartesian product, जब हमने define करना है तो ये क्या आएगा? Collection of ordered pairs. तो इसके लिए ordered pair के लिए हमें first place पे भी एक element चाहिए, second place पे भी एक element चाहिए. Just think about it. Okay? So अगर हमें first place का element मिल गया, second वाला set हमारा empty है. That means we cannot define it. And secondly, अगर first वाली place वाला element जहां से आना है अगर वो set empty हो गया, even then you will have the same thing. So if either of the set is empty, then this Cartesian product is going to be empty. Do you understand it? So अगर ये समझ आया है, please raise your hand so that we can understand you all have got it. और अगर किसी को doubt है आप पूछ सकते हो. सर सबको क्लियर है? Yes, yes. Most of them raise hand. Okay. So I hope now you have understood what is the meaning of Cartesian product since you have been doing this since your I think +1 class. So it is easy idea. Okay, we just wanted to review this part. Next we are going to define what is binary composition. Binary composition or binary operation, one and the same thing. Okay. So while defining binary composition, I want to recall a few things that you have already done. आपको याद होगा कि जब आप अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे उस टाइम पे हम लोगों को सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट चीज जो सिखाई जाती है वो होती है एडिशन. एडिशन फिर हमें सिखाई जाती है सब्ट्रैक्शन, फिर हमें सिखाई जाती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ऑल दीज थिंग्स आर taught to us one by one. Suppose अगर कोई हमारे पास अभी कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर क्लास के अंदर आता है
मतलब मैं बहुत बिगिनिंग की बात कर रहा हूं. सपोज वी आर टेकिंग टू नंबर्स. I'm writing, suppose we are taking two numbers. So now it all depends that what kind of operation we are using. Suppose you are using addition. So अगर आप addition use कर रहे हैं, so that means you are going to add these two numbers. So with this way, 2 plus 3 is going to be 5, right? और अगर हम इन दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन चेंज कर दें, एडिशन की बजाय अगर हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, आप इसको डॉट से भी लिख सकते हो, तो आपका जवाब आएगा 6 के बराबर. ओके, सो अगर हम सब्ट्रैक्शन बात कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू रिड्यूस or subtract these two numbers, the answer is going to be -1. So it all depends. अगर देखो ये दोनों नंबर सेम है, both of these two numbers are same, 2 and 3. The only difference that made difference in the result was due to this operation. Here it was addition, here it was multiplication, here it was subtraction. So अगर कोई न्यूकमर हो जिसको जानकारी नहीं है और अगर उसको सिर्फ नंबर्स के बारे में पता है और ऑपरेशंस का नहीं पता, the person may feel why we are writing all these different numbers here. If we are going to, अगर हम उनको समझाएं कि हम एक रिजल्ट, इन दो नंबर से ये रिजल्ट आ रहा है, somebody may feel कि इसका रिजल्ट 5 क्यों आ रहा है, इसका रिजल्ट 6 क्यों. The whole idea lies behind कि हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं. अगर हम एडिशन यूज कर रहे हैं, the result was going to be 5. अगर हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे थे, result was going to be 6. और अगर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, result was going to be -1. ओके, और अगर हम डिवीजन की बात करें, then you will get a fractional number 2/3, right? I should write 2 divided by 3. So this, then you will get this. So the whole idea, whenever you are going to apply some operation on two numbers, the whole idea lies behind which operation you are using. Okay, similar kind of things we are going to use to define this binary composition. Okay, so this is something that you have done in your first class. Okay, so I'm going to begin with the definition of what is going to be my binary composition. So I will pick the same idea. So here, since here I have two elements, as a result, after applying some operation, I'm getting another element. Similar kind of idea I'm going to talk about. Okay, so let G be a non-empty set, because for group you are going to use the notation of G. सुनील सर, कोई डाउट है, कोई बोले स्टूडेंट? No, sir. No. Okay. So here I'm writing my set as G because आपने यही नोटेशन यूज करनी है. जब आप ग्रुप को पढ़ोगे तो ये नोटेशन कॉमनली आप यूज करते हो. So I'm writing G as my non-empty set. Okay. So G हमारे पास एक non-empty set है, तो हम इसके ऊपर डिफाइन करने जा रहे हैं बाइनरी कंपोजिशन. सो बाइनरी कंपोजिशन क्या है? द बाइनरी कंपोजिशन ऑन अ non-empty set is a function that is defined from G cross G to G. ठीक है, तो इसका मतलब अब इस G क्रॉस G के एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. तो इसके एलिमेंट्स को, इसके थ्रू हम एक एलिमेंट एसोसिएट करेंगे G का. ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस थिंग, जस्ट सी. सो अ बाइनरी कंपोजिशन I'm writing it as star on a non-empty set G is a mapping. Mapping कौन सी है ये? Star. It is defined from G cross G to G, which associates with each ordered pair A, B. अब आपको ये पता है G क्रॉस G के एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे A, B, और A और B दोनों कहां से आ रहे हैं? G से आ रहे हैं. ठीक है, which associates with each ordered pair A, B of, अब इसके अंदर A, B एलिमेंट्स कहां से हैं? Of elements of G are uniquely defined element
तो बनेगा क्या, दैट इज आई से ए स्टार बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। सो इसका मतलब अगर ये हमारी कंपोजिशन थी तो ये स्टार ऑपरेट किस पे हुआ, इट वाज ऑपरेटेड ऑन द एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस जी, दैट वाज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका जवाब क्या आया, इनके बीच में कंपोजिशन लग गई ए स्टार बी। मैं एग्जांपल लिखूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। दिस इज एबल टू दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, और जो एलिमेंट ए स्टार बी बनेगा ना, अब ये ए कॉमा बी किसका एलिमेंट था, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और ये ए स्टार बी किसका एलिमेंट बनेगा, इस जी का। आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जांपल, देन वी विल रिव्यू इट। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, एन हमारे पास क्या है, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो आई एम डिफाइनिंग, तो जो मैं बाइनरी कंपोजिशन लेने जा रहा हूं, आई एम टेकिंग इट टू बी प्लस ऑर्डिनरी एडिशन। सो मैं एडिशन ले रहा हूं। सो अगर मैं अपने पास या यहां पे इस कंपोजिशन को जब डिफाइन करूंगा, अगर आप मींस ये कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगी, ये कंपोजिशन डिफाइन होगी n क्रॉस n टू n। ठीक है, सो ये क्या बनेगी, अगर हम दो एलिमेंट्स इसके लेते हैं, सो इफ आई टेक a कॉमा b, ऑर्डर्ड पेयर ले लें, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b आएगा, क्योंकि हमने जो ये कंपोजिशन डिफाइन करी है, ये क्या है हमारा यूजुअल एडिशन या ऑर्डिनरी एडिशन। तो अगर हम दो नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे, तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन आ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो दिस मींस जो यूजुअल एडिशन है या ऑर्डिनरी एडिशन है डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज अ बाइनरी कंपोजिशन। ओके, सो देयरफॉर आई कैन से जो यूजुअल एडिशन है इज अ बाइनरी कंपोजिशन, is a binary composition defined on natural numbers, defined on set of natural numbers. So मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं इसके बाद। अब सपोज करो अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूं, इफ आई टेक माय सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ये है मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके मैं डिफाइन करता हूं। अब जो हमारे पास स्टार है, बाइनरी कंपोजिशन है, इसको मैं लेने जा रहा हूं एडिशन। ठीक है, सो आप नोटिस करेंगे जो एडिशन है डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो मींस जैसे हम यहां अप्लाई करेंगे बाइनरी कंपोजिशन ऑपरेटेड ऑन ए बी, दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस बी। ठीक है, सो ये दोनों इंटीजर्स हैं, addition of two integers is again going to be an integer, so this is also going to belong to integers, right? So that means this becomes a binary composition, this becomes a binary composition, right? Similarly, if we talk about the case of अगर हम बाइनरी कंपोजिशन ले लें सबट्रैक्शन इन दिस केस, ठीक है, सो आप यहां नोटिस करेंगे कि अगर हम दो इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करते हैं, दैट इज आल्सो एन इंटीजर, सो ये भी क्या बन जाएगा, दिस इज आल्सो अ बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, और अगर इन केस मैं बाइनरी कंपोजिशन ले लूं प्रोडक्ट को, और अगर हम दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट करेंगे a into b, that is also an integer. ठीक है, so for in case of integers all these are binary compositions. If you understand it, please write yes, please raise your hand if you understand this part. Yes, all of you, if you understand, then please quickly raise hand. Yes, Nanvi 20PH04. Naman, Yes, sir. have you any doubt? No, sir.
अगर बेटा अगर किसी को डाउट नहीं है देन सर ने जैसे बोला प्लीज रेज हैंड, तो ऑल ऑफ यू क्विकली रेज हैंड ताकि हमें पता लगे कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा क्विकली जवाब दो बेटे, क्योंकि यहाँ हम कोई सिलेबस नहीं खत्म कर रहे हैं, वी जस्ट वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स, ऑल ऑफ और यू कोई टारगेट भी नहीं रखा हुआ। raise hand if you understand the concept, then quick raise hand। Okay sir, you can continue now। More than 50 have answered. Okay, students, now I am going to ask something on this, so you have this idea now. Similarly, before proceeding, I will write one or two more things. So like whatever we have written ahead, so similarly in case of natural numbers, you can talk about, here we are saying the addition, you can talk about product also, that is also going to be a binary composition in case of natural numbers. Okay, now there's a question. So if we take set of natural numbers, so this is my set of natural numbers, so is subtraction a binary composition? For the set of natural numbers, so this is subtraction. So just think about it. So if you understand and know the answer, please raise your hand. Yes, Tanisha, quickly। No, sir. why? Sir, because if, for example, if we subtracting 2 minus 3, then it will be a minus 1. And that is That's not correct. natural number. That's correct. So अगर आपने इस चीज को नोटिस किया हो, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। सो अगर आपने नोटिस good. किया हो, अब बेटा यू कैन म्यूट बैक। तो जब हमने बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन की, जब हम जी क्रॉस जी के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करते हैं बाइनरी कंपोजिशन को, तो रिजल्टिंग मेंबर आपका जी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। सो अगर वो जी का मेंबर नहीं है, दैट इज नॉट अ बाइनरी कंपोजिशन। ओके, सो दैट शुड बिलोंग टू द सेम सेट। सो अगर जैसे इन्होंने एग्जांपल ली, मैं सेम लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 दो मेंबर्स ले ले नेचुरल नंबर से, और अगर इसके ऊपर हम ये ऑपरेशन लगाएं, सो इट इज गोइंग टू बी 2 minus 3। सो रिजल्ट क्या आ रहा है? -1, which does not belong to natural numbers. So this is not a binary composition on set of natural numbers. Okay, so it is very simple to understand. Number 4, next I'm asking one more question. So if we have set of, so you all have seen, आपने क्या देखा ऊपर कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए जो ऑर्डिनरी एडिशन है वो बाइनरी कंपोजिशन बनती है, ठीक है। सो अब मैं सेट डिफाइन करने जा रहा हूं, ई इज सेट ऑफ even natural numbers, okay, and O is set of odd natural numbers. अब आप जरा सोचिए कि जो addition है, is addition a binary composition on E and O? Just think about it. क्या एडिशन जो है वो इन दोनों सेट्स के ऊपर बाइनरी कंपोजिशन है? या यू कैन थिंक अबाउट इट वन बाय वन कि जो एडिशन है क्या वो ई के ऊपर, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है उसके लिए बाइनरी कंपोजिशन है। फिर सोचिए ओ के लिए जो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है उसके लिए बाइनरी कंपोजिशन है। इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड यू नो द आंसर, प्लीज रेज योर हैंड। Quickly, if you know the answer, then raise your hand।
Can I call someone, sir? हाँ sir, you can ask someone. So, Vipul Saroj, 20PH005. Yes, sir. On even number, uh, addition is a binary operation, Okay. Very And good. what about odd natural numbers? and on odd number, addition is not a binary operation. Okay. Why? So you can see it very clearly कि अगर हम दो इवन नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर दैट विल बिलोंग टू द सेम सेट. सो दिस फॉर दिस सेट इट विल बिकम बाइनरी कंपोजिशन. और लेकिन अगर हम दो ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट. इसलिए जो एडिशन है हमारे पास वो बाइनरी कंपोजिशन नहीं बनेगी ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन इवन के लिए बनती है. Is it clear to all of you? I think it is very easy, so you can do it. Okay. Very good. So next I'm writing one more question. Sir, कुछ पूछ रहे हैं? No. I just say that Vipul response is very good. Okay. Set of integers. So I'm taking Z to be set of integers. Now the question is कि अगर हम डिवीजन ले लें, जो डिवीजन है, इज इट अ बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स? For yes, you may raise hand. Otherwise, lower your hand. Vipul. No, sir, so division is not a binary operation on Z, because if we take 3 and 2, 3 Yes. on Numerator and 2 in the denominator, right? yes, sir, then the answer will be 1.5, and 1.5 is not an integer. Right, that's correct. Students, I hope you are able to understand. If we are dividing two integers, it is not necessary the result will belong to set of integers. So we cannot define this division as a binary composition in set of integers, right? So next, if I take the set of positive rationals, so this is collection of rational numbers for which x is strictly positive. Okay, so I'm taking collection of positive natural number, positive rational numbers, right? So for this case, you can see it very clearly that addition, Sangeet sir, just a minute. multiplication. I want to ask. Yes, sir. Yes. Yes, I want to Okay. ask one thing. How many of Yes, you sir. know that how can you define rational number? If you know the answer, then quickly raise hand. There are 105 students, only 5 raised hand. 8. Quickly. It's a second, third standard question. How many of you know that how we can define rational number? Only 20? Yes, Monica, 20PH014. Defined as it is represented Yes, right. as the P upon Q of two integers such that Q not equal to 0. Monica, can you please redefine? It is represented by P upon Q of two integers that is a Q not equal to 0. Yeah, that's correct. P and Q both are integers and Q cannot be 0. Okay. So secondly, since you want this Q to be non-zero, you can take one more representation for this, that is P by Q such that
P belongs to integers and Q belongs to natural numbers. Okay, can you think this is the same as this? Both of these sets are same. Kanika, It's very simple. yes, Kanika, Yes, sir. Both are same. both are same. Yes, sir. Okay. Let us assume it, sir, they are understanding it, because Yes, I can yes. write a small thing that suppose if you have element of this kind, suppose that element is I write 2 by minus 3, right? So if this is of this type, you can write this as minus 2 by 3. Okay, so it is easy to see. You can think about it that whether you write set of rationals as this part or this part, this is going to be the same thing. Okay, so but this makes my job more easy whenever I am picking the denominator from set of natural numbers. Okay, so here now I am coming back. So here we are considering set of positive rational numbers. So you must notice that addition, multiplication and division are binary compositions. On set of positive rationals. So here I have included division also. You can think about it. Okay, so I'm not discussing this part. So same if we take the set of reals. So for set of reals, addition, multiplication and subtraction, all these will serve as binary compositions. I will simply write addition, subtraction, multiplication. All these are binary compositions. You can check it very easily. So next there is another question related to the binary composition, that is, if I define a composition, so here I am again taking RB set of reals, a set of real numbers. Okay, I am defining a composition star from on this set as how we are defining it. It is going to be A star B is going to be A. Okay, means this was defined like this. Whenever you are operating this composition, or you can write this as well as this is the one in the same thing. Okay, so जब हमने ये composition ली A star B, it is returning you the first element. Okay, suppose अगर हम लिखते 1 star 5, you are getting 1. If we are defining 1 star 7, again you are getting 1. So and if you write 7 star 3, you are getting 7. Okay, so whatever the first element will be there, that will be returned to you as a result. Okay, so just check, is it a binary composition? So the question is it a binary composition? Is star a binary composition? Be quick. सुनील सर दे रहे हैं जवाब? Still, there is no student. Yes, students. Yes, Naman is there and Kanika is there. Okay. Yes, Naman. Yes, sir. 3 decomposition है. अगर आप ये नोटिस binary करो ये बाइनरी कंपोजिशन है. ओके, क्यों बेटा यही बता दो. क्योंकि आपने डिफाइन किया आ हुआ फिर हमें आ रही चीज तो also नंबर. ओके, सो आई होप आपने कहा कि जो रिजल्टिंग नंबर है दैट इज आल्सो गोइंग टू बिलोंग टू द रियल नंबर. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बाइनरी कंपोजिशन, राइट? सो ये हमारे पास एग्जांपल जो है बाइनरी कंपोजिशन की बनती है. सो अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा क्विकली चलना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज मैं मिस कर जाऊंगा कुछ चीजों को. नेक्स्ट, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज
one is addition modulo n. So अगर हमारे पास एक सेट है, I define set to be S0, 1, 2, n minus 1. N is a positive integer. Ritesh, yes, sir, you can continue. So, okay, so अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एडिशन मॉडुलो n का क्या मतलब है, ठीक है। सो फॉर, पहले समझ लो, उसके बाद एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे इसको। फॉर ए बी बिलोंगिंग टू एस, वी डिफाइन ए स्टार बी, जो हम कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, ए स्टार बी टू बी द least non-negative integer, least non-negative integer obtained as remainder when a plus b is divided by n. ओके, सो ये ऑपरेशन जो है, जिसको हम एडिशन मॉडुलो n बोलते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर हम a स्टार b कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो a स्टार b कंप्यूट जब किया जाएगा एडिशन मॉडुलो n, तो वो क्या बनेगा कि आप इन दोनों का सम करोगे और उसको आप n से डिवाइड कर लोगे। जो रिमाइंडर बचेगा, दैट विल बी द आंसर टू दिस a स्टार b। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग इट। तो पहले, उससे पहले एक चीज छोटी सी देख लो, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा। सो इसके लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं ना, नोटेशन, अगर मैं एडिशन मॉडुलो n यूज कर रहा हूं, तो इसके लिए जब मैं कंपोजिशन को ऑपरेट करूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, a प्लस बी, और ये सम के पैर में हम n लिखते हैं। सो दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन मॉडुलो n, ठीक है। और जो आपकी कंपोजिशन है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सी इट केयरफुली, बहुत आसान है। अगर मैं सेट अपना S ले लूं, माई सेट S इज गोइंग टू बी, आई टेक 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जब मैं एडिशन मॉडुलो n की बात कर रहा था, तो मैंने S के अंदर एलिमेंट्स लिए थे 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिए हैं अपने, यहाँ पे मैं n की वैल्यू ले रहा हूं 5। इट मींस हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन मॉडुलो 5। We are going to talk about addition modulo 5. So अगर मैं डिफाइन करूं अब 0 स्टार 1, अब आप नोटिस करो 0 और 1 का हम सम करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 0 और 1 का सम करके कितना बना 1, अगर उसको 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 1 के बराबर, ठीक है। और सेम अगर मैं लिखूं 1 स्टार 2, इसका जवाब क्या आएगा 2। और अगर मैं लिखूं सपोज 2 स्टार, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 3, just a 3 sir, 3, 3, yes, 3, yes, 2 स्टार 3, ये कितना बना 5। ओके, सो 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। yes, नेक्स्ट सर, बच्चों you can raise hand if you know the answer, if you can raise hand. प्लीज टेल अबाउट 2 स्टार 4 एंड 3 स्टार 4। Yes, Nikita. Sir, 2 star 4 is 6 and 3 star 4 is 7. No. 2 star Okay, we have- 4. Sum is 6. Yes, it is correct. But you have to divide sum by 5. Then what is the remainder? Sum करने के बाद उसको 5 से डिवाइड भी करो और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। So 2 star 4 equals to 1 and 3 star 4 equals to 2. Yes, very good. 2 star 4 is 1 because 6 आ गया सम उसका, और 6 को जब हमने 5 से डिवाइड किया, so 5 1s are 5, so remainder is 1. हमें रिमाइंडर लिखना वहां पर। So similarly 3 star 4 is 2.
प्लीज इस चीज को ध्यान से सोचो जरा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एडिशन डिफाइन किया है, आपको याद होगा जब मैंने पहले एग्जांपल लिखी थी वहां मैंने लिखा था यूजुअल एडिशन। उसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन मॉडलो एन भी यूज करते हैं, तो जब हम एडिशन मॉडलो एन की बात करेंगे प्लीज इस चीज को ध्यान रखना आप कि एडिशन मॉडलो एन करते टाइम हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, और जो मॉडलो एन है मेरा उससे मुझे उस सम को डिवाइड करना है, और जो मेरा रिमाइंडर होगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट कंपोजिशन। कि जब मैंने ए स्टार बी लिखा, मेरा ए स्टार बी, और यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी मॉडलो एन, इसका जवाब जो आएगा वो आर आएगा। वेयर आर क्या है? वेयर आर इज द रिमाइंडर when a plus b is divided by n। just understand this thing कि इसमें फर्क है नॉर्मल एडिशन में और इसमें फर्क है, ठीक है। और अगर आप नोटिस करें जब आपने कंपोजिशन चेक करी, सारे नंबर्स की अगर आप कंपोजिशन चेक करोगे, ठीक है, तो आप इस अगर मैं लिखूं 4 स्टार 4, ये बताएगा कोई व्हाट इट इज गोइंग टू बी? 3। Okay, that's correct. 4 star 4 is going to be 3. Okay, so इस तरह से हम डिफाइन करते हैं बेटा एडिशन मॉडलो n, ठीक है। सो एडिशन और मॉडलो n के अंदर हमें क्या लिखना है प्लीज याद रखना, जो भी हमारा सम बनेगा a स्टार b अगर मैंने लिखा, यू कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो। सो जब हमने ये लिखा तो a प्लस b का जो सम बना उसको हमने n से करना है डिवाइड, और रिजल्ट हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर। दिस r इज आवर रिमाइंडर। समझ आ रहा है? तो अगर हम रिमाइंडर ही लेना है तो आप नोटिस करोगे जब मैं ये कंपोजिशन सारे एलिमेंट्स पे डिफाइन कर दूंगा तो मेरे पास हर एक एलिमेंट इस S का ही मेंबर बनने वाला है। सो दिस इज अ बाइनरी कंपोजिशन। ओके, डू यू ऑल अंडरस्टैंड इट? सो अगर किसी को डाउट है यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। बेटा किसी को पूछना है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और यू कैन रेज हैंड। अगर डाउट है बेटा प्लीज पूछ लो, क्योंकि अगले वाली चीज के लिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा। यस मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान प्लीज अनम्यूट। बेटा माइक ऑन करो अपना। Okay. मेरे So I ख्याल से think गलती से ना होगा। all of you understand the concept how we can define addition modulo n. ओके, सो अब आपको डिफाइन करना है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। ये आप ही जवाब दोगे इसका। मैं सेट ले रहा हूं, सेम सेट 0 1 2 अप टू से मैं इसको 3 4 यहां तक ही ले लेते हैं, ठीक है। और हम पहले डिफाइन करेंगे n इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। पहले बताइए जरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन मॉडलो। एडिशन मॉडलो एन आपको समझ आ गया, तो जरा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन बताइए मुझे क्या होगा। सो मींस अगर मैं लिखा a स्टार b, नोटेशन आसान है, मैं लिख देता हूं a क्रॉस b और इस क्रॉस के पैर में मैंने n लिखा। सो प्लीज ये बताइए इसका क्या बनेगा, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। No, just Sir, may I? quickly raise hand. No, just a minute. Raise hand, we will Kanika call wants one by to one. answer. Okay, Kanika. It means A is multiplied by B and divided by N, then we got a remainder. Yes, very good. So that means whenever we are going to define multiplication modulo n, जैसे हमने एडिशन मॉडलो n के अंदर क्या किया था, a और b को ऐड किया था और उसको n से डिवाइड किया था, जो रिमाइंडर आता था दैट वाज द रिजल्ट। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n डिफाइन कर रहे हैं, हियर वी विल टेक प्रोडक्ट ऑफ a एंड b और उसको डिवाइड करेंगे n से, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग a इंटू b बाय n, ओके, a इंटू b बाय n, तो उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दिस कंपोजिशन, ठीक है। सो अब हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं। एस हमारे पास ये सेट है, हम बात करने जा रहे हैं n इज इक्वल टू 5 के लिए। सो अब आप ही लोग जवाब देंगे व्हाट अबाउट 0 स्टार 1, व्हाट अबाउट मैं कुछ लिखूंगा 2 स्टार 3
4 star 4, 3 star 4. Please answer one by one. Please raise your hand. Sunil sir, please ask few students. Yes, Shivalik. Kanika Sharma, 19 PS 003. Kanika, Zero, you can zero unmute star or one, yes. 0 star 1 is Yes. 1. 1. Why? What is the product of 1 and 0? 1 और 0 का प्रोडक्ट क्या होगा? 0. बेटा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. जब हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n करना है, उसके अंदर क्या करेंगे? हम a और b की प्रोडक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट का जवाब आएगा उसको हमने n से डिवाइड करना है. ठीक है. और जो रिमाइंडर बचेगा वो ही हमारा रिजल्ट होगा. ठीक है. तो इसका जवाब क्या आएगा? 0. व्हाट अबाउट 2 स्टार 3? 1. So 1. 1. कैसे? 3 multiplied by 2 equal to 6 and Yes. 6 divided by 5, then remainder becomes 1. वेरी गुड. एंड सर नेक्स्ट स्टूडेंट कॉल करो सर, उससे 4 स्टार 4 पूछते हैं. शशि कोंडल, साक्षी कोंडल, सॉरी, साक्षी कोंडल. So 4 star 4 will be 1. 1. Very good. 1. ओके. 3 विशाल स्टार सिंह, 4 भी पूछ लो सर किसी से. Sir, 3 to 4 equal to 2. Very good. So do you all understand how we are? There is a minor difference between addition modulo n and multiplication modulo n. बस फर्क यही पड़ेगा कि वहां पे हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं n से, और यहाँ पे हम उनकी प्रोडक्ट ले रहे हैं. प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि जब स्टूडेंट्स इसको ऑपरेट करते हैं कई बार वो गलती करते हैं. ठीक है. सो इस चीज को ध्यान से करना. इट इज वेरी इजी, राइट. और जो रिमाइंडर अगर आता ये है आपका, वो compositions- रिमाइंडर, हाँ यस, जो रिमाइंडर आपका आता है वो सेट के एलिमेंट ही होते हैं इसके. आप देख सकते हो उसको कि एस हमारा 0 1 2 3 4 है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 1 2 3 4 में ही आएगा. सेम केस विद एडिशन आल्सो. यस. और यहाँ पे हमने सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स लिखे. यू विल हैव टू चेक इट फॉर ऑल द एलिमेंट्स. ओके. So only then you can say it. But this is going to be true because we have checked it for few elements, right? So next we are going to talk about, I hope this idea is clear about binary compositions. We have gone through a plenty of examples. So next I'm going to write types of binary compositions. The first thing that we are going to talk is commutative. So a binary composition star on a non-empty set G is commutative. Is commutative if A star B is B star A for all AB belonging to G. ठीक है. सो अगर चाहे आप मतलब एलिमेंट्स का अगर ऑर्डर चेंज करो A और B का और कंपोजिशन ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट हमारे पास सेम आता हो A B के सॉरी G के सारे एलिमेंट्स के लिए, अगर ये चीज ट्रू हो, देन वी से the composition is commutative. The binary composition is commutative. ठीक है. अगर हम एग्जांपल की बात करें, so अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर commutative binary compositions on किस किस पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए भी, ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी,
सेट ऑफ रैशनल्स के लिए भी और सेट ऑफ रियल्स के लिए भी। इन सब के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर है, रिजल्टिंग नंबर, वो सेम ही पार्ट में से आने वाला है, ओके। और दूसरी चीज, अगर ऐड कर रहे हो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑर्डर में कर लो, सो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। और दूसरी चीज अगर मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, एक तो होगी एक चीज, ठीक है। अच्छा, क्या सब्ट्रैक्शन जो है क्या वो कम्यूटेटिव है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन कहां वैलिड है? सब्ट्रैक्शन वैलिड है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, रियल्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए। तो क्या जो सब्ट्रैक्शन है क्या वो कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन है? अगर हम ऑर्डर चेंज करें, सब्ट्रैक्ट करें, इट्स वेरी सिंपल। Yes, Naman. No, subtraction is not commutative. So answer is no, because if we are taking subtraction, if we are taking a minus b or b minus a, okay, there is a difference of minus, okay, so that is not going to be true, and subtraction is not a binary composition, is not a commutative binary composition for integers, rationals and real numbers, right? So we defined one operation also that was defined from reals to reals as a star b is a, okay. So if you notice, this is also not commutative. Why? If we are taking 2 star 3, the result is 2 because it is returning the first element, and if we take 3 star 2, it is returning 3. So this is, both of these are not equal. So this is, so ये एग्जांपल इसलिए लिखा क्योंकि पीछे हम डिस्कस करके आए हैं कि ये भी एक बाइनरी कंपोजिशन होती है। वी सी दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन, राइट? Sir, sir, you can write a star b equal to b, a star b equal to b. Okay. Yes, students, if we define binary composition like a star b equal to b, is it commutative? You raise your hand. Yeah, just think if about you know it the answer. and answer. Yes, Simran. No, sir. So it's not a commutative. Yes, can you explain? Can you give example? Yes, Simran. Yes, कोई sir. एग्जांपल दे सकते हो बेटा एक? Yes. Yes, sir. So if 3 star 2 is equals to 2. Yes. You're right. What can you say Go about ahead. 2 star? Yes, yes, Simran. 3 star 2 is equal to 2. Yes, sir. So what is 2 star 3? Yes, sir. 2 star 3 is equals to 3. Then 3. Are they equal? yes, sir. No, क्या वो इक्वल है दोनों? एक का आंसर 2 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, तो क्या कॉम्यूटेटिव sir. होंगे ये? नो. वेरी गुड. no, sir. ओके, सो सेम A चीज star है, यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट पिक किया था और यहाँ हम सेकंड एलिमेंट पिक कर रहे हैं। जी सर जी। अनिल सर प्लीज। So if we take a star b equal to a plus b, if we take a star b is equal to a plus b, Sagit sir, you can write. Yes, yes, I'm writing it, sir. Now They should what know can it. you say about this? Because Is it commutative?
Yes, sir. No, Nikita. So it is not Yes, commutative. Nikita. It is Yes, sir. So okay. it is not How commutative. can you say? How can you say about this? Sir, कैसे बोल? one star 2 is equal to 2. One star 2 equal to 1 plus 2. Is equal to A plus yeah. B. We are talking One star about 2 this. is equal to and a plus b is equal to 3. No. Now the 2 binary is not equal to composition 3. is Nikita just a minute. बाइनरी कंपोजिशन बेटा चेंज कर दिया हमने अब दिया है नया क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? अब इसके बारे में सोचो, Yes, क्या sir. ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा? सर मैं इसी के बारे में बोल रही हूँ, नहीं होगा कम्यूटेटिव. कैसे? ए स्टार बी का क्या आंसर आएगा? ए स्टार बी अगर हमने 1 और 2 लिया है तो वो 2 आएगा. नहीं, वो तो पिछले क्वेश्चन के बारे में मत सोचो ना तुम बेटा हमने ये नई binary इसकी composition बात बताई कर रहे हैं. ये देखो ये Screen डी पे- पार्ट. हमने नई कंपोजिशन बताई है, उसमें ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बनाया है, राइट? अब इस पे सोचो क्या ये कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं होगा? यस शिवालिका. होगा. शिवालिका. सपना कुमारी. Yes, sir. Sir, commutative होगा. Yes, sir. कैसे होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सर प्लस जैसे सी. सर हम एग्जांपल ले लें a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और अगर हम 3 प्लस 2 करें तो तब भी 5 आएगा. इक्वल आएंगे तुमने 3 स्टार 2 a और b. 3 star 2 is 3 plus 2, that is 5, or 2 star 3 is also 5. So it is a binary composition. It is sorry, it is a commutative. It satisfies the commutative property, right? Sangeet sir, you can continue now. ओके सर, ओके, थैंक यू. अब इसके बाद हमें कम्यूटेटिव का थोड़ा आइडिया मिल गया है. सो वी आर प्रोसीडिंग नाउ. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is associativity. ठीक है? A binary composition star on a non-empty set G is said to be associative if A star B star C is equal to A star B star C for all ABC belonging to G. ठीक है? तो इट मीन्स हम दो वे में ये कंपोजिशन कंप्यूट करेंगे. पहले ऑन द लेफ्ट अगर ध्यान दो कि पहले हम बी स्टार सी, बी और सी की कंपोजिशन लेंगे, फिर उसकी कंपोजिशन लेंगे ए के साथ. ऑन द अदर हैंड पहले ए और बी की कंपोजिशन लेंगे, फिर उस रिजल्ट की कंपोजिशन लेंगे सी के साथ. अगर ये चीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए हमारे नॉन एम्प्टी सेट के सारे मेंबर्स के लिए, देन वी से द बाइनरी कंपोजिशन इज एसोसिएटेड. ठीक है? अब मैं अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी लिखूं तो सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी है दोबारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? सो अगर हम एडिशन लें या मल्टीप्लिकेशन लें, इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर set of natural numbers, set of integers, set of rationals, set of reals. So this is associative composition and it is very easy to understand कि अगर हम दो नंबर्स को किसी भी वे में ऐड कर लें, किसी भी नंबर में उनको मल्टीप्लाई कर लें, उनका जवाब सेम ही आने वाला है. ठीक है? So this is one thing that you should understand. And if I take a composition, just see carefully, अगर मैं A और B, अगर मैं कोई कंपोजिशन डिफाइन करूं रियल से, ठीक है,
और ये कंपोजिशन कैसे डिफाइंड है? ए कंपोजिशन बी इज डिफाइंड एज ए प्लस बी बाई 2. सो इज इट एसोसिएटिव? जरा सोचो, क्या ये एसोसिएटिव बनेगी? और इसके साथ ही मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं. सो इसको मैं पार्ट 1 कह रहा हूं. सेम सेट के ऊपर मैं डिफाइन करता हूं एक और. ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b. सो इज इट एसोसिएटिव? कोई स्टूडेंट जल्दी से चेक कर सकता है? आपको चेक क्या करना है इसके लिए? यू विल चेक ए कंपोजिशन बी composition C on one side, on the other side you will check A composition B composition C. आपको देखना है क्या ये दोनों बराबर आते हैं. So first one is associative, but second one is not. First one is associative, second one is Yes, not. Yes, sir. Okay, चलो एक चीज चेक कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि मैं टाइम शॉर्टेज के कारण खुद ही लिखना चाहूंगा. So what is A composition B? It is A plus B by 2. राइट, कंपोजिशन सी. सो इट इज गोइंग टू बी, ये कैसे डिफाइन किया है? जो दो नंबर्स का आप कंपोजिशन ले रहे हो, दैट उन दोनों का सम करना है, 2 से डिवाइड करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस, अब यहां दो नंबर आपके ये हैं, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2. तो जवाब क्या आ गया बेटा? ए प्लस बी प्लस 2c बाई 4. इज इट करेक्ट? ये मैंने लेफ्ट साइड कैलकुलेट करी है. अब राइट साइड कर लेते हैं. ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी, सिंपल कैलकुलेशन है वैसे ही. बी कंपोजिशन सी क्या बना? बी प्लस सी बाई 2. सो अब इन दोनों एलिमेंट्स की कंपोजिशन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो जवाब क्या आया? 2a प्लस बी प्लस सी. सो आर दे इक्वल? कौन स्टूडेंट जवाब दे रहा था? क्या ये दोनों बराबर है बेटा? No, sir. नो. सो नीदर ऑफ दीज इज अ एसोसिएटिव. ये दोनों ही एसोसिएटिव नहीं है. सो सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट मोर एग्जांपल्स. ठीक है, Yes, जो sir. एसोसिएटिव नहीं बनती है, एसोसिएटिव बनती है. यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि हमें जाना है ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ, सो आई एम मूविंग लिटिल क्विकली. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये डेफिनेशन समझ आई कि एसोसिएटिव का मतलब क्या है? अगर ये समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड. Quickly raise your hand. Yes, 25 out of 90. 28, 30. I think they are raising it. They are taking time. Okay, so we can proceed. I think we can proceed. Okay. So it So reaching up. To next thing is, that's fine, sir. That's fine. So next we are talking about identity element with respect to a binary composition. So what is the meaning of this identity element with respect to a binary composition? Okay. So a non-empty set G is said to have an identity element with respect to a binary composition star on G if there exists an element E belonging to G such that the composition of E with A is equal to A with E is equal to A for all elements A belonging to G. Okay, so just think about it.
कि हमने जो कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन करी थी, वो कंपोजिशन हम ऑपरेट कर रहे हैं उस आइडेंटिटी और ए के साथ, किसी भी वे में कर सकते हैं। अगर उसका जवाब ए ही आता हो, मतलब जो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट था उसको हमने आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया अंडर द गिवन बाइनरी कंपोजिशन, और अगर हमारा जवाब ए ही आ गया तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की, और सपोज करो हमारा जो ऑपरेशन है हम बात कर रहे हैं अंडर एडिशन, तो क्या आप कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हो जो मैं इसके किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं और जवाब मेरे पास सेम एलिमेंट आ जाए? क्योंकि ऑपरेशन क्या है बेटा? एडिशन है। कि जो एलिमेंट लें, अगर ए एलिमेंट ले लिया जेड का तो जवाब भी ए ही आ जाए, मतलब ए प्लस समथिंग किसी भी वे में कर लें हम तो जवाब मेरे पास ए आ जाए। क्या बता सकते हो कौन सा एलिमेंट है वो? जीरो, दैट्स राइट। You just raise your hand. हाँ, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए ताकि पता लग जाए हमें। सो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, और उसके बाद चेक करना क्या है जीरो जेड को बिलोंग करता है? जी हाँ। सो जीरो इज अ मेंबर ऑफ जेड। ओके, तो अगर इसको ऐड किया जाए इसके अंदर तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो हमारे पास क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और जो आपका ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन एडिशन है, तो इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या बोलते हैं बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं सेम चीज को लेके। अगर मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है और मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, इसके लिए बाइनरी कंपोजिशन में ले रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, तो बता सकते हो कि a इंटू समथिंग लिया जाए किसी भी वे में और जवाब मेरे पास a आ जाए। कैन यू थिंक ऑफ दिस e? सर 1। So 1. दैट्स करेक्ट। सो 1 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है, आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें जवाब आपके पास a ही आ जाएगा। इसका मतलब जो 1 है वो क्या बन गया बेटा? दिस इज कॉल्ड, ये भी आइडेंटिटी है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपने नोटिस किया होगा यहां पे कि सेम सेट था z, यहां भी z है। ठीक है, लेकिन यहां बाइनरी कंपोजिशन क्या थी? एडिशन। यहां बाइनरी कंपोजिशन क्या थी? मल्टीप्लिकेशन। सो बाइनरी कंपोजिशन एडिशन के अंदर आइडेंटिटी 0 आ रही है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द बाइनरी कंपोजिशन, कि हम कौन सी बाइनरी कंपोजिशन लेके चल रहे हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये लाजमी नहीं है कि हर बार आपके पास बाइनरी कंपोजिशन के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? Yes, Vipul. देयर इज नो, मतलब कोई भी नहीं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं ये हो a प्लस ई शुड बी इक्वल टू a, ये चाहते हैं ना सर? क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर में जो वैल्यू वो 1 से स्टार्ट होती है, तो अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो वो कोई और वैल्यू बन जाएगी। विपुल, यस सर। विपुल होगा क्या? क्या नंबर ऐड करने से वो नंबर आए? क्या नंबर? रिजल्टिंग नंबर सेम आ जाएगा। हाँ सर, नेचुरल नंबर में ऐसा कोई है ही नहीं। कोई वो नंबर बताओ, क्या नंबर होगा? ई क्या होगा? नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तुम बताओ पहले ई क्या होना चाहिए। बेटा आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो सर जो कह रहे हैं, पर फिर भी पॉसिबल नंबर क्या है? वो चाहे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करे चाहे ना करे, वो बात की बात है। पॉसिबल 0 है। हाँ, ये सर पूछ रहे हैं आपसे। सो ई कैन बी 0 बट ई डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यस सर। राइट, सो देयर इज नो एडिटिव आइडेंटिटी। राइट, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? यस सर। कौन सी है वो? सर 1 है।
1 है, दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट? Yes. तो आपको ये Yes. चीज समझ आ गई कि फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर इज नो एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? Yes. ओके, अब मैं एक छोटा सा रिमार्क लिख रहा हूं, इसका प्रूफ मैं नहीं लिख पाऊंगा, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, एट द एंड हम अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। सो ये है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट if one exists of a set with respect to a binary composition is unique. So अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा क्या होती है बेटा? दैट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है? So if you understand this concept, please write yes in the chat box so that we can proceed to the next part. Or you can raise hand. Yes. Yes, I think they understand. Okay, that's better. Most of the So next up एक चीज रह गई हमारी, चलें सर आगे? Yes, yes. Okay. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी कंपोजिशन. व्हाट इज दैट? सो कंसीडर, अच्छा अब इस चीज का ध्यान रखना कि जब हम इनवर्स की बात करने जा रहे हैं किसी बाइनरी कंपोजिशन के साथ, तो पहले उस सेट के अंदर उस बाइनरी कंपोजिशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना जरूरी है. जैसे हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उसके लिए इनवर्स एलिमेंट की बात कर ही नहीं सकते. तो अगर आप इनवर्स एलिमेंट की बात करना चाहते हो फॉर सम सेट विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी कंपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द सेट विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी कंपोजिशन. सो अब जब मैं डिफाइन करूंगा इनवर्स को, तो पहले ये चीज मैं लेके चलूंगा कि मेरे पास जो सेट है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सो कंसीडर a non-empty set G with identity element E belonging to G with respect to binary composition star. Then an element Y belonging to G is called an inverse of some element X belonging to G if X composition with Y is equal to Y composition with X is equal to identity element. ठीक है? So जब आप उस एलिमेंट की कंपोजिशन लिखोगे गिवन एलिमेंट के साथ, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए बेटा? आपके पास आइडेंटिटी होना चाहिए, तो उसको उसका वो बोला जाएगा, इनवर्स बोला जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, राइट? सो अंडर एडिशन अगर हम ले लें, तो अब इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास 0 है, ठीक है? सो अब आप अगर आप कोई एलिमेंट इसका पिक करो, सपोज यू टेक x बिलोंगिंग टू z, तो आपको अब इसका इनवर्स फाइंड करना है. सो यू नो y इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ x बिलोंगिंग टू z, सो दैट व्हेनेवर यू विल राइट x plus y is equal to y plus x, it is going to be identity 0, right? So it is very easy to see that this happens in this case, right? उसके बाद अगर मैं बात करूं z को, अगर मैं ले लूं अंडर मल्टीप्लीकेशन, इस केस में आइडेंटिटी हमने अभी किया था 1 के बराबर होता है, ठीक है? सो अगर मैं x लूं z का मेंबर, कैन यू थिंक ऑफ सम y इन z सो दैट
x star y, y star x is 1. Is it true? Can you find some y in z? Yes, sir. Can you find some y in z so that you can write so? Be careful. Yes, sir. Okay, so if I take 2 belonging to z, what is inverse of this? Sir, 1/2. Does it belong to integers? क्या ये belong करता है बेटा integers को? No, sir. तो फिर आपने कैसे कह दिया कि हाँ? So आपके पास आइडेंटिटी जरूर एग्जिस्ट करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, पर एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस के अंदर। क्या ये समझ आया आपको जो हमने डिस्कस किया है? If you understand it, quickly raise your hand. If you have any doubt, then now my question is, if you have any doubt, then you can raise your hand. Yes, Monica. Pratham Patyal. I think first I clear all the feedback, then now you can raise your hand if you have any doubt. I think they are clear, sir. We can proceed. Yeah. But one thing, is it true for all elements of integers? That's very good question. My question is, क्या ये सारे integers के लिए true है कि किसी भी integer का inverse जो है वो exist नहीं करता है? Yes, Naman. 1 करता है exist, क्योंकि 1/1 होता है। हाँ, और only one, एक, yes, -1 के लिए -1, very good. और -1 1 और -1, इसके अलावा और भी कोई नंबर है? No, very good. So 1 and -1 have their multiplicative inverse in integers. In integer. Yeah. Okay. So चलें सर आगे? Yes. Okay. So स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो किया, अगर हम उस चीज को क्विकली रिव्यू करें तो हमने अब तक क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ बाइनरी कंपोजिशन, और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स करी। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, जैसे कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन का मतलब क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी कंपोजिशन का मतलब क्या है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी कंपोजिशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमने एक कंडीशन भी इंपोज कर दी कि अगर उस बाइनरी कंपोजिशन के विद रिस्पेक्ट टू हमारे सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो ही हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम थोड़ा आगे अपने फाइनल चीज की तरफ चल रहे हैं जो हमने डिफाइन करना था। एक छोटा सा आइडिया है आप लोगों के लिए कि आप जो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और जो इनवर्स है, इसको एडिशन मॉडलो एन और मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो एन के लिए जरूर एक्सप्लोर करना। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और जो इनवर्स होता है किसी एलिमेंट का, अगर वो एग्जिस्ट करता है, वो भी यूनिक होता है। ठीक है, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट बिकॉज आई एम प्रोसीडिंग टू द मेन आइडिया। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन अ ग्रुप।
सो अब आपने नोट किया होगा कि हमने कुछ चीजें ऑलरेडी इसके लिए डिफाइन करी हैं. सो आई एम टेकिंग G टू बी अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, अब मैं इसके साथ रिलेट करूंगा एक सिंपल चीज को. सपोज जब कोई छोटा बच्चा है, एज सून एज अ चाइल्ड इज बॉर्न, ओके, उसका ना कोई नाम है ना उसका कोई पता है, कोई नहीं जानता कुछ भी. उसके बाद हम सबसे पहले उसका एक नाम दिया जाता है बच्चे को. ठीक है, एक नाम रख दिया किसी का, चलो वट एवर द नेम इज गिवन. उसके बाद लोग उसको उस नाम से बुलाने लगते हैं. थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है. क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद अकॉर्डिंगली कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, उसके नाम के साथ वो चीज अटैच हो जाती है. ठीक है, सेम उसके बाद वो किसी प्रोफेशन के अंदर चला जाता है. कई बार कोई इंजीनियर बन के उसके बाद SDO बन गया, है ना, कोई एक्सियन बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया. अकॉर्डिंगली उसके नाम के साथ कुछ टाइटल्स अटैच होते जाते हैं. सिमिलरली जब हम ग्रुप की बात करने जा रहे हैं, हमारे पास इनिशियली एक नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनाने के लिए हमें इसको कुछ एडिशनल पार्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट एडिशनल पार्ट? दैट पार्ट इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. तो इसको एक क्वालिफिकेशन हमें एक्वायर करानी पड़ेगी. व्हाट इज दैट? दैट क्वालिफिकेशन इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज दैट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? हमने अभी डिस्कस किया बाइनरी कंपोजिशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी जब हम ग्रुप की बात करनी है तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है. ठीक है, और वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा. दैट इज गिवन बाय द बाइनरी कंपोजिशन, जिसको हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, वो आप प्रॉपर्टीज की जानकारी आपको ऑलरेडी है, तो आपके लिए चीज को डिफाइन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, सो आई एम डिफाइनिंग इट. सो हाउ टू डिफाइन अ ग्रुप? ग्रुप क्या चीज है? Because we have collected all the things, so I am going to directly proceed to this thing. Let G be a non-empty set with the binary composition star. ठीक है, अब आपको पता है स्टार जो बाइनरी कंपोजिशन इस पे डिफाइंड है वो कैसे चलती है? G क्रॉस G2G चलती है. ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हमारे पास बाइनरी कंपोजिशन है. ठीक है, देन G इज कॉल्ड अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन स्टार if the following properties are satisfied. कौन सी properties? The first property is associativity. तो जो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि जो बाइनरी कंपोजिशन जो है इट शुड बी एसोसिएटिव. मींस A star B star C should be equal to, and this should be true for all members of G. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो आपका बाइनरी कंपोजिशन सेटिस्फाई करे वो कौन सी होनी चाहिए बेटा? एसोसिएटिविटी. दूसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसका क्या मतलब है कि गिवन बाइनरी कंपोजिशन के विद रिस्पेक्ट टू आपके सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट E belonging to G such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belonging to G. ये हमारी दूसरी कंडीशन है. ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तभी हो सकता है अगर हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर क्या है कि हर एक एलिमेंट का, फॉर एवरी, जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ईच मेंबर A belonging to G, हर एक मेंबर के लिए एक इनवर्स होना चाहिए, एक एलिमेंट. फॉर ईच A belonging to G देयर शुड एग्जिस्ट B belonging to G such that A star B is equal to B star A is equal to identity. ठीक है, और ये ट्रू किसके लिए होना चाहिए? हर एक मेंबर A के G के हर एक मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, सो अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं देन वी से
G together with this composition is a group. ठीक है, और हमने अब जो पीछे प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी उसके मुताबिक हमने कितनी सारी कंपोजिशंस डिफरेंट सेट के ऊपर डिस्कस करी है जो बाइनरी कंपोजिशंस बनती हैं। तो जो बाइनरी कंपोजिशंस बनती है आप उनको लेके इन प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो, क्या वो एसोसिएटिव है। हमने एसोसिएटिव की भी प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स करी हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी चर्चा करी है, सेम हमने इनवर्स की एग्जिस्टेंस की भी बात करी है। ठीक है, सो एक प्रॉपर्टी कई किताबों में आप लिखे हुए मिलोगे जो हमने कहा बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड है। अगर बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड है उसको बोल दी, उस जो बाइनरी कंपोजिशन को डिफाइन करने की बात है वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती अगर आपकी बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड नहीं तो कई किताबों के अंदर वो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। यू नीड टू लुक फॉर ओनली दीज 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो पीछे हमने एग्जांपल्स लिखी थी जैसे एडिशन मॉडलों की बात करी है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात करी है, आप उनको चेक कर सकते हो कि वो ग्रुप बनते हैं। ओके, सुनील सर कुछ आप इस पे कमेंट करना चाहोगे? यस, फॉर जो सेकंड हमने प्रॉपर्टी लिखी है सर, इसको आप नीचे इसी में क्वांटिफायर की फॉर्म में लिखना, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। यस सर, एक मिनट में कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको कलर चेंज, हाँ यस, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी such that for all A belongs to G such that A star E equal to तो इसमें जो अगर आप यहाँ देखोगे E इज यूनिक, E एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे A के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। बट जैसे ही हमने इसके क्वांटिफायर चेंज करेंगे, आप नेक्स्ट में देखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, नाउ इन सेकेंड फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट जो है वो बाद में है। अगर देयर एग्जिस्ट बाद में हो इसका मतलब है कि दिस B डिपेंड अपॉन A। जैसा आप A लोगे आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग B मिलेगा, लेकिन पहले में आइडेंटिटी में देयर एग्जिस्ट E बिलोंग मींस E इज यूनिक, E फिक्स हो गया है, ये सारे A ग्रुप के एलिमेंट के लिए काम करेगा। तो अपनी मर्जी से आप क्वांटिफायर जो है वो आगे पीछे नहीं करोगे। आप इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, क्वांटिफायर के चेंज होने से उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। फर्स्ट में देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G, इसका मतलब ये E एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट के लिए काम करेगा, यूनिक। लेकिन सेकंड में देयर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B G, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू, इट मींस B डिपेंड अपॉन A। अगर A आप 2 लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उसका इनवर्स मिलेगा, A 3 लोगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स चेंज हो जाएगा। आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे जो हैं वो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल अपनी मर्जी से इसको इंटरचेंज करते रहते हैं, बट द मीनिंग इज चेंज इफ यू चेंज द क्वांटिफायर। I think this is from my side, sir. Sandeep sir, if okay, you sir, want okay. to add. No, sir. That's fine. That's very nice thing. I think ये बच्चे जब पढ़ेंगे ना इसको और ज्यादा वो they can understand it better. So अगर आपको ये बेटा समझ आई है डेफिनेशन, प्लीज रेज योर हैंड, और अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन अनम्यूट। Now it's open to all of you. If you want to ask anything, you can unmute the audio and ask questions related to today's lecture. Yes. So we are stopping here. So I will not move ahead now because I have taken so much time. We will share this lecture in your group. So if you have any doubt, you can ask your query. Yes, one by one. If now आपको किसी को पूछना है, now you can unmute the audio. Yes, Divyanshi, Monica, Muskan, Vipul, Shabnam, anyone? बेटा अगर कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक।
ये सबका हैंड रेज है, बच्चों का पता नहीं क्या रीजन है इसका। जस्ट मैं एक बार फिर से इसको फीडबैक, आई क्लियर द फीडबैक। यस, नाउ माय क्वेश्चन, yes, don't raise hand, just listen the question. If you have any doubt, if you want to ask anything, then you can raise your hand. किसी को कुछ पूछना है कि डाउट है तो आप अपना हैंड रेज करें। Yes, student. So I think there is no doubt or no query. So thank you very much, Sangeet sir. Thank you so much, sir. Behalf of Department of Mathematics and all the students of our college, I thank you once again for sharing your lectures, sharing your views on introduction on groups. और ये जो लेक्चर आज का लेक्चर था, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर अगर आपने अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। इट इज द बेसिक। और सर ने बहुत ही सिंपल वे से बाइनरी कॉम्पोजिशन कैसे होती है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन बनती है और ग्रुप बनाने में प्रॉपर्टीज कैसे हेल्पफुल हैं। एक एक प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स। तो ये इतना बेसिक में आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है। और अगर इसमें आपको लगता है कोई इन केस कभी कोई डाउट होगा, सो यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द ग्रुप, आई विल डिस्कस। और एक और आपको अनाउंसमेंट है कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फाउंडेशन कोर्स इन मैथमेटिक्स, जो 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और उसका फॉर्म जो है वो आज आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। उस लेक्चर, उस जो कोर्स में हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, जैसे लॉजिक, सेट, रिलेशन, फंक्शन। फिर आप रियल एनालिसिस इस बार पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। उसमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड्स, लीस्ट अपर बाउंड, एक्सियम्स, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज और ग्रुप्स का बेसिक, जैसा आज आपने पढ़ा है इसी टाइप का एक लेक्चर। तो ये सारा जितना भी मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किए, ये हम फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाने जा रहे हैं। और ये कोर्स 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और आई थिंक 4 अगस्त तक, ये 4 या 6 तक होगा, आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। 7 अगस्त 7 अगस्त 2 हफ्ते का कोर्स है ये। तो आप लोगों को, अगर आप वो कोर्स अटेंड करते हो, एक तो आपके लिए ऐसे भी कि दिस इज वेरी हेल्पफुल कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने आपके हैं जो मैथमेटिक्स में बच्चे के बेसिक क्लियर होने चाहिए, वो सारे हम टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे। और इसी टाइप का, जैसे आपने एक लेक्चर आज सुना, उस दिन आपको 4 या 5 टीचर ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे और एक एक करके आपसे वो जो भी आपके डाउट्स होंगे, हर एक टीचर आपके साथ अपने जो व्यूज है वो शेयर करेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट कि आज वो जो मैं शेयर करूंगा, यू गो थ्रू, फिल द फॉर्म। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को करने में, आप आफ्टर अटेंडिंग द कोर्स यू विल गेट ई सर्टिफिकेट। उस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बट उसके लिए आपको कुछ जो रिक्वायरमेंट है कि आपको सारे सेशन अटेंड करने पड़ेंगे और जो भी उसमें फॉर्मेलिटी है वो सारी उसमें ब्रोशर में लिखी होंगी, आप उनको गो थ्रू हो जाना। बट दिस इज आई थिंक पर्सनली एडवाइज यू दैट यू मस्ट अटेंड दिस कोर्स। नाउ वंस अगेन आई थैंक यू सर। इनको टाइमिंग बता दो उसकी ना, कई बार बच्चों को डाउट लगता है। टाइमिंग के हिसाब से है। टाइमिंग उसका जो है वो शाम को 4:30 to 5:45 होगा। उस टाइम मोस्टली आप, और अभी आपकी कॉलेज की क्लास भी नहीं है तो आप फ्री हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। और अगर आप सच में सीखना चाहते हो मैथमेटिक्स को, तो आई थिंक दिस इज द राइट वे। और ये टाइम भी बिल्कुल फ्री है आप, और आपके लिए एक बहुत बढ़िया पैकेज एक जो है मैथमेटिक्स का आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो फी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपको 2 हफ्ते जो है वो हम
बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के फाउंडेशन कोर्स है वो हम पढ़ाएंगे. सो आई थिंक इफ यू, अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट होगा तो यू कैन शेयर योर डाउट इन द ग्रुप और सेंड योर डाउट इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. मैं आज आपके साथ ब्रोशर शेयर करूंगा. यू कैन अप्लाई फॉर दिस बिफोर 21st और सर 20th है आई थिंक 21st या 22nd. 21st है लास्ट डेट सर. जी जी 21 जुलाई से पहले पहले आपने फॉर्म फिल करना है. आफ्टर दैट वो शॉर्ट लिस्ट होंगे. उस शॉर्ट लिस्ट में कितने स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं वो भी देखना है, क्योंकि इस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेज सुखबडोली जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो आप लोग उसमें सिलेक्ट होंगे. अगर अप्लाई करेंगे तभी आप उसमें सिलेक्ट होंगे. तो कितने सिलेक्ट होते हैं ये भी डिपेंड करेगा आपके मेरिट के ऊपर. सो नाउ once again I thanks Dr. Sangeet Pathak for sharing the very good lecture, very good information given by sir regarding introduction on groups. So if you now I will share one feedback form with all of you. You can fill this feedback form right now, and after that all of you can leave the meeting. Just a minute, I share. Yes, I have shared this in the chat box. You can click on this, fill the form. If you face any difficulty, then I again send the link. After that, you can leave the meeting. Thank you very much. And thank you, Sangeet sir, for sharing your valuable time. Thank you so much, sir. Really pleasure. Now you can fill the feedback form.
जी संगीत सर, अशोक सर। हाँ जी सर। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो संगीत सर को मुबारक दो जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया Thank you, sir. आपने भी, और सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब